اپنا سوال مربی صاحب کو دہرا دیں تاکہ وہ اس پہ بھی کام شروع کر دیں. میں حوالے ان کو خود بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک تو حوالہ یہ میں نے دیا تھا کہ اعجاز احمدی کے صفحہ 3 پر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے عبداللہ آتم کی پیش گوئی میں صاف یہ کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا, کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا. حالانکہ مرزا صاحب نے پیش گوئی میں کہیں یہ بات نہیں کہی, بلکہ پیش گوئی جنگ مقدس سے کھول کر میں نے دکھائی تھی. اس میں مرزا صاحب نے 15 مہینے کا اس کو ٹائم دیا تھا, زندگی تھا وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. ایک تو یہ میں نے اعتراض کیا. یہ عبداللہ آتم کی دوسرا بات کر رہے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. پھر اسی صفحے پر نیچے آخری 2 لائنیں پڑھیں اگر, تو اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اکرم کے بارے میں نے پیش گوئی میں صاف یہ کہہ دیا تھا تو قتل کے ذریعے سے 6 سال کے عرصے میں قتل کے ذریعے سے ہلاک کیا جائے. اب اکرم کی پیش گوئی کھول کے دیکھیں, وہاں بھی قتل کا ذکر نہیں ہے. تو 2 تو یہ میں نے کیے تھے اعتراض, اور ان کے حوالے بھی وہاں دیے تھے. اعجاز احمدی میں ایک ہی صفحے پر یہ دونوں باتیں حوالہ میں دے دوں گا. میں صرف چاہتا ہوں کہ سوال آپ اپنے الفاظ میں دہرا دیں, بس اور کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی ہاں جی وہ میں نے دہرا دیا ہے. اب یہ جو سوال ہے, کوئی میں تو منتیں کرتا رہا مجھے اٹھا لیں. اب تو دھند پڑی ہوئی ہے اور صبح کا ٹائم ہے, ڈرائیو کر رہے ہیں, چلتے چلتے کیا سوال کریں. سوال تو یہ ہے, ربی صاحب موجود ہیں آپ سوال کریں عامر صاحب. ہو آپ بھی موجود ہیں, پھر آپ موجود ہیں, پھر تو خطرے والی گل کوئی نہیں. پھر خطرہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش, یہ تو نعمت ہے نا. اور اس نعمت کو عام طور پر جو ناشکرہ انسان ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. جب بھی اس پر نعمت نازل ہوتی ہے, رحمت نازل ہوتی ہے, تو وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے, غلط کام شروع کر دیتا ہے, گستاخیاں شروع کر دیتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے. 5 جنوری 1917 کا میں خطبہ پڑھ رہا تھا آپ کے خلیفہ صاحب کا الفضل اخبار سے, وہ 20 جنوری 1917 کے اخبار میں چھپا ہوا ہے, الفضل اخبار میں. تو وہ کہتے ہیں, خلیفہ صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش جو ہے وہ انسان کو گستاخ کر دیتی ہے. یہ میرا اعتراض ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی, حالانکہ اللہ کی رحمت اور بخشش جو ہے وہ عام طور پر انسانوں کو ایسا ہی کر دیتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, گمراہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے, گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, گستاخیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں, یہ میرا سوال ہے. تو کیا آپ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا لاڈ اور پیار لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے اور بعد میں پھر اسی بگاڑ کے اوپر وہ سزا بھی دیتا ہے, یعنی کہ لاڈ کیا, خراب کیا, بعد میں سزا دی ہے؟ اچھا آپ بھی جواب دیں گے نا, مربی صاحب نہیں دیں گے؟ مربی صاحب ہی دے لیں. جانے والے تھے 1:15 بجے, ہمارے پاس اب ہو گئے 1:38. تو انہوں نے کہا تھا جی میں زیادہ سے زیادہ 1:30 تک آپ کے ساتھ رکوں گا. پتہ نہیں وہ سو گئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا. نہیں تو میرے سوال کے جواب سے جو میں نے سوال کی صورت میں کیا ہے آپ کی تشفی نہیں ہوئی. آپ نے جواب تو دیا نہیں, ایک فکرہ بولا ہے صرف, میرے خیال ہے وہ بھی میں سن نہیں سکا کرتے ہوئے. 2-3 فکرے 4 فکرے بولے, تو کہا کہ جواب دیں میرے کام. اگر آپ کو جواب سمجھ آئی ہو تو ان کو بتا دیں, شاید میری آواز کی فریکوینسی ان تک نہیں پہنچ پا رہی. کسی سے بات کر رہا تھا, میں یہاں نہیں تھا, کیونکہ میں مائک میوٹ کرتا ہوں تو میری آواز. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میرا سن لیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. میں جب اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں نا تو اوپر میری آواز تو نیچے ویسے بھی جا رہی ہوتی ہے, تو گیسٹ کی آواز صرف اوپر رہ جاتی ہے, جو نیچے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو گیسٹ کی آواز نہیں جاتی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہو نا کوئی, تو میں پھر ادھر سے دوسرے روم میں جاتا ہوں بات کرنے, تاکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو میں نے نہیں سنی بات. جی اچھا, ایک چھوٹی سی بات میں نے اور آپ کو کہنی ہے آپ کی ٹیکنیکل ہیلپ کرنے کے لیے, کہ آپ جب بھی میوٹ کریں اپنا مائک تو بجائے اس کے کہ آپ اسٹوڈیو سے ٹک ٹاک کا مائک آف کریں, آپ اپنے مائک کے اوپر میوٹ کا بٹن دبا لیں جو آپ کے پاس ہے. دونوں طرح یہی سیم چیز ہوتی ہے. اچھا ہاں,
वो सेम कोई मसला नहीं। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने बिजी हो जाना है। एमजी साहब आप म्यूट कर लें। डॉक्टर साहब जी जी, ये क्यों आपके खलीफा साहब ने बात कही है कि पढ़ी है आपने बात खोल सकते हैं? हाँ जी, मैं अभी इस वक्त तो नहीं खोल सकता, लेकिन जो जुमला आपने पढ़ा है मैं उस पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि आपने ये कहा है कि मिर्ज़ा हमारे खलीफा ने ये कहा है कि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत वगैरह जो है वो नेमत है और उसकी वजह से बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये कहते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है जबकि जिन लोगों पर रहमत हो, नेमत हो, वो उसके बाद बिगड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपने नुक्ता उठाया है वो नुक्ता तो फिर खुदा ताला की ज़ात पर इल्ज़ाम हुआ ना, कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस पर मर्ज़ी नेमत करे, रहमत करे, इनाम करे, उसको बिगाड़ दे और बाद में उसी के बिगड़ने पर उसको सज़ा भी दे दे। तो ये तो इल्ज़ाम हो गया खुदा ताला की ज़ात पर। अलबत्ता हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो बात फरमाई है वो डेफिनेटली इस अंदाज से फरमाई है कि दिलों की कजियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पर नेमतें और रहमतें और फ़ज़ाइल भी उन कजियों को बाज़ औक़ात दूर नहीं कर पाते। उनकी फितरत या उनके अंदर जो कजी है वो उस तमाम चीज़ों के बावजूद कुफरान करते हुए, जब भी वो कुफरान करते हैं तो उनकी कजियाँ ज़ाहिर होती हैं और वो बिगड़ते हैं। तो जो बात आप फरमा रहे हैं वो इल्ज़ाम है खुदा ताला पर, जो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं वो खुदा ताला को पाक करार देता है कि वो जब भी रहमत करता है, नेमत करता है, फ़ज़ाइल करता है, उसके बाद इसकी वजह से कजियाँ पैदा नहीं होती। अलबत्ता किसी के अंदर कजी हो तो वो इनकी वजह से ज़रूर बिगड़ सकता है। ये आप कह रहे हैं, आप ठीक है? अगर आप इस अंदाज से बात दे रहे हैं तो ये ठीक हो गया। मेरे पास टाइम थोड़ा है, बाकी सब प्लीज ना बोलें। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने बिजी हो जाना। मुझे 1 मिनट दे दें बात खत्म करने के लिए। सवाल का जवाब तो हो गया ना, बाकी साथियों को रोक के रखें, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा, फिर आप जो मर्जी करें। ये जो बात, जितनी बातें इन्होंने कही है ना डॉक्टर ज़िक्रिया साहब ने, कि बंदे के अपने दिल में कजी हो तो वो उसमें बिगाड़ पैदा होता है और ये अल्लाह ताला की ज़ात पर इल्ज़ाम है, ये जितनी बातें इन्होंने मेरी तरफ मंसूब की हैं, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के मिर्ज़ा साहब की तरफ मुँह करके कहें भला। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने बराहीन अहमदिया की पहली जिल्द में 555 सफ़े पे यही बात लिखी हुई है कि तेरी बख्शिशों ने मुझे गुस्ताख कर दिया, तेरी बख्शिशों ने मुझे गुस्ताख बना। जी 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 जी, बोले बराहीन अहमदिया 555 सफ़ा। 1 मिनट, बराहीन अहमदिया की कौन सी जिल्द कह रहे हैं आप? जिल्द खोलें, 555 सफ़ा खोलें, तीसरा हाशिया खोलें। अब ये जितने आपने लफाज कहे ना, ये सारे आपने मिर्ज़ा साहब को कहने हैं। मुझे तो आसानी से आप कह लेते हैं, मिर्ज़ा साहब को नहीं कहते। तो मिर्ज़ा साहब सामने होंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं आमर दे दिल च कजी है, मिर्ज़ा साहब दे दिल कोई कजी नहीं है। आमर दे दिल च कजी से हम ਅਸੀਂ केवल साबित कर चुके हैं। ये बाकी तो लोग करा के रखे हैं। साहब मेरे पास 5 मिनट में टोटल बाकी नहीं बचे हैं। भाई सारे दोस्त 1 मिनट रुक जाए, बात सुने। अच्छा आमिर साहब, बात ये है कि आप भी थोड़ा सा ना रवैया जो ना ठीक कर रहे हैं। रूहानी खजाइन की जिल्द कौन सी कह रहे हैं? पहली जिल्द है 555 555। रवैया मेरा इतना पॉजिटिव है, देखें मेरा तो रवैया कल मैं तो नीचे लिख रहा था भाई वाहबी कहते हैं, कहने दो आप मर्ज़ी कह लो, ये कोई झगड़े वाली बातें, छोटी छोटी बातें हैं। बात ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, है ना, कि वो कहने दो भी मौज हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਦਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਇਜ਼ਾਨਾ ਰਾਏ ਉਸੇ ਪਸੰਦ ਆਈ। जी हाँ जी हाँ, मैंने बड़ी पसंद आई है। जिल्द 1 में बराहीन अहमदिया हिस्सा 4 में सफ़ा 555 पर तो ऐसी कोई मुझे तहरीर नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल में। जी मैं हाशिया पढ़ रहा हूँ, बकिया हाशिया नंबर 1 है। हाँ, तीसरा हाशिया। अच्छा, क्या लिखा हुआ वहाँ पे? बोले फिक्रा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जल्दी बोले। जहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी जो असल इबारत है उसका क्या करना है, उसको नहीं पढ़ना? नहीं, ये 555 कह रहे हैं ना सफ़ा।
जी 555 क़बल वक़ू सुनकर फिर इस तायद को ज़हूर में आते हुए बचश्मे खुद देख ले तो कोई इंसान ऐसा पागल और दीवाना नहीं कि फिर भी इन सही पेशगोइयों और कई तायदों पर यकीन कामिल ना कर सके। हाँ, अगर फ़र्त तासुब और बेईमानी से किसी चश्मदीद माजरा का दानिस्ता इनकार करे तो ये और बात है, लेकिन फिर भी इसका दिल इनकार नहीं कर सकता और हर वक्त इसको मुल्ज़िम करता है कि तू शरीर और सरकश आदमी है। अब चंद कुशूफ़ और इल्हामात नवारिदा बग़र्ज़ अफ़ादा तालिबीन हक़ लिखे जाते हैं और इसी तरह इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अगर खुदा ने चाहा तो कुछ मवाहिब लुदनिया से इस आकर इबाद पर ज़ाहिर किया जाएगा। वो इस किताब में दर्ज होता रहेगा इल्ला माशाअल्लाह। और इससे गरज़ ये है कि ता यकीन और मारिफत के सच्चे तालिब फ़ायदा हासिल करें और अपनी हालत में कशाइश पावें और इनके दिल पर से वो पर्दे उठें जिनसे उनकी हिम्मत नहायत पस्त और इनके ख़यालात नहायत पुरज़ुल्मत हो रहे हैं। और इस जगह हम मुकर्ररन ये भी ज़ाहिर करते हैं कि ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनका सबूत देने से यह खाकसार आजिज़ हो या जिनके सबूत में अब अपने ही हम मज़हबों को पेश किया जाए, बल्कि ये वो बदीही सिद्क़ बातें हैं जिनकी सदाकत पर मुखालिफुल मज़हब लोग गवाह हैं और जिनकी सच्चाई पर वो लोग शहादत दे सकते हैं जो हमारे दीनी दुश्मन हैं। और ये सब एहतमाम इसलिए किया गया कि ता जो लोग फ़िलहक़ीक़ा राह रास्त के ख़्वाहां और जोइयाँ हैं इन पर बकमाल इंकिशाफ ज़ाहिर हो जाए कि तमाम बरक़ात और अनवार इस्लाम में महदूद और महसूर हैं। अब ये सफ़ा 556 की मैं अगली 2 लाइनें पढ़ चुका हूँ। पढ़ते जहाँ इल्हामात है ना लेमाल सबक वो वाले जो ईसा अलैहिस्सलाम को तो आप 555 कह रहे हैं तो आपका तो हवाला है ही नहीं दुरुस्त। फिर अब मैं 555 से 56 चला गया हूँ, 56 से आगे 57 पे भी चला जाता हूँ तो इल्हामात जो है वो जो आप कह रहे हैं वो तो मुझे की नज़र नहीं आ रहा। इल्हामात आगे हैं वो सफ़े का कहाँ हवाला आपने देना है ना, मैंने देना है वाला। अब और किन्ने देना था वाला, सवाल कौन कर रहा है? ओ यार ये बढ़िया 55 तो 56 चला गया, 56 तो 57 चला गया, 57 तो 58 चला गया। मेरी बात सुने, देखें इंशाल्लाह कल भी प्रोग्राम करना है तो ये लंबी चीज है। मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ा जल्दी शुरू में आ जाएगा ना तो वो बेहतर वक्त होता है। मुझे तो आपने उठाना ही नहीं ना जी, शुरू में ही आके कॉल डाली थी। सुन ये मिर्जा साहब का इल्हाम है। पहले बात सुन लेना, बात सुने। शुरू में जब दोस्त नहीं आते ना, कम होते हैं, बिल्कुल 10-15 लोग होते हैं। अब उस टाइम आ जाए ना तो उस टाइम रबी साहब भी फ्रेश होते हैं, उस टाइम बात आप 4 बजे मेरे पास 3 बजे टाइम तो नहीं ना होता। नहीं 5 बजे जी, 5 बजे। करम हाय तुम्हारा करद गुस्ताख, ये मिर्जा साहब का इल्हाम है। सबक तनी के आगे सफ़ा नंबर बताएं, सफ़ा नंबर 564 हो सकता है यार, 555 है ना उसका, बात को समझे। इब्राहिम अहमदिया का 500 अगर 55 है तो आपके जो किताब है उसमें रूहानी ख़ज़ाइन का 564 हो जाए। आगे पढ़ते जाएं जहाँ इल्हामात मैंने आपको बताया, ये इल्हाम है मिर्जा साहब का। करम हाय तुम्हारा करद गुस्ताख, तेरी बख्शिशों ने हमें गुस्ताख कर दिया। दिल की कजी थी मिर्जा साहब के दिल में। डॉक्टर साहब तुसी तो मार छोड़ोगे नहीं, कितने मार छोड़ांगा मैं। 1965 ते पहुंच गया, अगे जाके खत वाली गल आ गई, आर्या वाली, ठीक है, आर्यों की बात आगे आ गई है। मुंशी साहब वाला मर्दान की बात आ गई है आगे जाके 566 सफ़े पे, 567 पे जेलम वाला रबिया की बात आ गई है, आर्या वाला। इल्हामात कहाँ मिर्जा साहब के लिखे हुए हैं? और चाचा जी हवाला आपने देना है। आप मुझे कह रहे हैं 555 में, वहां से 555 से टुरता 563 पे आ गया हूँ, 64 पे आ गया हूँ, 65 पे 66 पे आ गया हूँ मैं। मेरी बात सुने ना, रूहानी ख़ज़ाइन का एक कंप्यूटराइज्ड वो सर्च इंजन है, उसमें सर्च इंजन छोड़े, हवाला आपने मुझे दिया है यार। एमजी भाई है कि यार सिरे ना नाश्ता की यार काफी पी के आओ टॉपिक। कल इसको कर लें, आज वैसे भी टाइम अब काफी हो गया, कल कर लेते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ड्रामा करे, चलो माफ कीता है, बाद कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, पूरी ब्रॉड गवाह है तमाम अहबाब। मेरी बात सुने अभी एक सेकंड, और मुझे ना आप हवाला भेज दें, अपना हवाला है इनका बराहीन अहमदिया की, जो रूहानी ख़ज़ाइन की जो पहली जिल्द है, बराहीन अहमदिया का हिस्सा चहारुम है, उसका सफ़र नंबर 555 इन्होंने बड़ी तहद्दी से ऐलान किया। हाँ, तो 555 से चलते और फिर हाशिया दर हाशिया नंबर 3 इन्होंने ये मिर्जा साहब का इल्हाम आपको नहीं मिला? लेमा सबक तनी भाई मुझे नहीं मिला ना, आप सही नहीं कह रहे।
चलो मैं सही आमिर नहीं साहब कह कल रहा। फिर करते हैं इस पे बात। कितना फोन आ गया। अपना मुझे आपको सवाल की समझ आई है क्या? सवाल क्या है वो? मुझे कोई समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उनको कहा कि कल बात कर लेंगे इस पे, आज इसको छोड़ देते हैं, टाइम भी कम है। एक तो बात ये है, मेरी एक इसमें तो अर्ज ये है, अगर इजाज़त दे तो, कि एमजी साहब आप इस चीज़ का भी एहतमाम किया करें कि पहले पूछा करें कि असल सवाल है क्या। ठीक है, वो पहले आके एक आपके लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, आप आराम से उस पर जवाब देने शुरू कर देते हैं, फिर वो वहीं से कोई बात पकड़ के एक और सवाल करके तो गोया कि वो जो है ना एक ट्रैप बनाते हैं। ये वैसे ही जो नहीं है मगर तकवा के कमलात भाई, खिलाफ बात है। देखिए कमलात भाई, अगर आपने हवाला कोई देना है आप दुरुस्त हवाला दें, हमें पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं, हमने तो किताब खोली है। जी बिल्कुल, हवाला भी दुरुस्त दे। और ये जो होता है ना कि ये ऐसे लिखा और वो ऐसे लिखा, हर बात जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट में होती है किसी में। हाँ ऐसे तो नहीं होता कि दो बातें लिख के तो बस बात खत्म है। चलें देखिए जी, आलम हाशिया मैं आदमी यही है। कह रहा था, अगर एमजी आपने भाई सुना बात सुने, नहीं, एमजी भाई हाशिया नहीं बल्कि असल इबारत पहले पढ़नी पड़ेगी। ठीक है उसके मगर अलावा ये भी पूछा ओ, करे कि असल सवाल क्या है। ये ओ असल प्यारे सवाल है कि भाइयों, इसके अलावा कोई असल सवाल है। अच्छा तो एक रणवीर बात ये, साहब सवाल शायद इस करके पे आए पहले हैं, दोबारा कुछ वो रोशनी डालना अच्छा चाहिए। एक सेकेंड कमाल भाई, बात ये है, आलिम आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, 60 साल उम्र हो चली है, टेंशन की बात नहीं है, कोई बात नहीं, कभी गलती ऐसी हो जाती है, रियायत कर दें, मुमकिन है कल दुरुस्त हवाला लेके आ जाएं तो उस पर बात हो जाए, इसलिए किसी के जाने के बाद खामखा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एमजी तो भाई प्लीज। जर्नल डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये जो आते ओए मैं हैं तानू इल्जाम एक नहीं दे रहा, तुसी ट्रैप मेरी गल नहीं बनाते हैं। समझे यार, तुसी चाह पीती कि नहीं सवेरे उठ के? मैं तो हुण दोपहर दा खाना भी खा लिया डॉक्टर साहब, तुसी चाह ते ही अटके हो। तो फिर ब्लैक टी पियो ताकि नहीं तुसी थोड़ा जिहा चुस्त कमलात भाई ने हो। ना मैं टी वगैरह सुलेमानी मैं लस्सी क्लीन पी दो, लूंगा। सुलेमानी क्लीन दो फिर कमलात भाई ने। क्यों कमलात भाई? सुलेमानी क्लीन दो या दाऊदी क्लीन दो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। जी मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो सवाल होता है ना, इसको समझना, एक तो दो तीन पैराग्राफ का सवाल बना लेते हैं, उसमें आप किस तरह उस सवाल को निकाल सकते हैं कि असल जो सवाल है वो है क्या। वो एक पूरी एक इक़्तिबास पढ़ देते हैं, फिर उसमें से वो किसी दूसरे इक़्तिबास के साथ जोड़ के कहते हैं कि ये बता दें, और दोस्त जो होते हैं वो आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं। अभी तो मुझे ये अभी जितनी बात हुई है डॉक्टर साहब की और आमिर साहब की, सवाल ही नहीं समझ आ सका कि सवाल क्या है भाई। कभी वो 555 सफ़े पे जा रहे हैं, कभी तीसरे हाशिए पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। जो मुअय्यन सवाल होता है वो सवाल करना चाहिए, सवाल क्या है, एतराज़ किस चीज़ के ऊपर आपको, वो 2-3 लफ्जों में ही होता है, वो इतना लंबा तो पैराग्राफों में होता नहीं है। नासिर भाई उन्हें मैंने आज बचा लिया ना, मैंने कहा अब कल तक वाला वो ढूंढ लाएं फिर आके सवाल कर लें, सही वाला कर देख लें। ये और जो भी आपसे जो सवाल किया करे, एक मिनट जरा, जो सवाल किया करें ना उनको तहरीर कर दिया करें या टेप कर दिया करें, ताकि ये सवाल भी जो है ना 2-2 मिनट के बाद इधर से उधर हो जाते हैं, ये भी नहीं समझ आती इनको ये सवाल करते क्या हैं और फिर किधर पहुंच के जाते हैं। आपने जो आज बात की है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कोई ना रूहानी ताल्लुक है आपसे मेरा। एक सीट अच्छा। तो मुझे देगा, एक सीट पे देगा कोई मीर साहब। मैं जा रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तो पहुंच गया हूँ घर, आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ।